opposite term is trade payables. When I use the term payable, it is again from the point of view of the business. तो जो बिजनेस ने उधार लिया हुआ है, जो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, that will be an integral part of trade payable. Apart from that, it also includes bills payable. Yeah, I've shared the screen. Is the screen visible to everyone? Yes. What about? Yes, ma'am. It is visible. Suraj, check your network. Okay, so it is okay. Thank you. So it is the sum total of creditors and bills payable. And as explained yesterday, in continuation of that, if that is the business. So yesterday we took example of A Limited being our business and accounts being prepared for A Limited. Then what happens is that say it is purchasing some raw materials on credit from MS. MS is Messrs. Messrs is the party which is selling you the raw material. In this example, say it is Star Limited. So what happens? Our business is making a purchase of raw material on credit. Now Star Limited will ask, if it asks our business, that you give something in writing as to acknowledge the raw material purchased on credit. So that writing, that acknowledgement of debt in writing becomes a bills payable for A Limited, for our business. Okay, and vice versa for Star Limited, this bill of exchange becomes a bill receivable. Okay, so for my business, if there is a creditor by the name of, say, let's take it as Moon Limited. So this creditor will be part of trade payable, and this bills payable addressed to Star Limited will also be part of trade payable of my business. Okay, so sum total of these terms gives you the trade payable. Moving further, these terms have individually also been explained. I hope by this time all of you are clear with the meaning of creditor, the person or entity to which our business owes some amount. On the other hand, bill payable is when you give in writing that this is a specific amount that needs to be paid to the other counterparty on a specified date. Okay. Next term which we use a lot is goods. Goods are articles or items purchased for sales purpose at profit or processing in the manufacturing process. Okay. So there are two things mentioned in this statement. One is that you can purchase some items for sale purpose. Okay. This is what happens in a trading business. ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, एक जगह से आपने गुड्स परचेज करे और दूसरी पार्टी को सेल कर दिया. Okay. Also, goods can refer to as some products which are used as raw material in production. Okay. So, the items which are purchased for further processing. Further processing will take place in a manufacturing business. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फर्दर प्रोसेसिंग होती है, उन रॉ मटेरियल्स को भी फिर हम गुड्स बोलते हैं. ओके, गुड्स आर बेसिकली द कमोडिटीज इन विच द बिजनेस डील्स. सो टेबल्स, चेयर्स, डेस्क, ये सब क्या है, गुड्स इन विच द बिजनेस इज डीलिंग. दो स्पेसिफिकली
when we start with the practical, there is no account by the name of goods account. ओके, गुड्स अकाउंट नाम का कोई अकाउंट नहीं होता. अगर आप गुड्स को परचेज कर रहे हो तो वो आते हैं आपके परचेजेस अकाउंट में. अगर गुड्स को सेल कर रहे हो तो वो आएगा सेल्स अकाउंट में. ओके, एंड देन रिलेटेड टर्म इज परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि आप, फॉर एग्जाम्पल, यू विजिट अ मॉल नाउ. In today's time, again, that is something which becomes more of a hypothetical example. Or say you order something online, you receive that, you're not happy with the quality of the product you have received, you return it. That becomes a purchase return. The purchase you have made, you're not happy with that, it is returned back. बिजनेस ने कुछ रॉ मटेरियल परचेज करा, कुछ उसमें पार्ट है, कुछ उसमें क्वांटिटी है रॉ मटेरियल की विच इज नॉट अप टू द मार्क. इफ दैट इज रिटर्न्ड बाय द बिजनेस बैक टू द वेंडर, देन दैट बिकम्स अ परचेज रिटर्न फॉर द बिजनेस. तो गुड्स आपने वापस करे वेंडर को, सेलर को, तो वो आपके कौन से अकाउंट में आएगा? परचेज रिटर्न में आएगा. उसी तरह बिजनेस के गुड्स जब सेल हुए, फिनिश्ड गुड्स जब सेल हुए, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि टेबल्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो टेबल सेल हुए, जो कस्टमर था वो क्वालिटी से खुश नहीं है, वो आपको प्रोडक्ट वापस कर देता है, तो ये कौन से अकाउंट में आएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट. ओके, सो पर से गुड्स इज नॉट एन अकाउंट. It is either purchases, sales, purchase return, or sales return account. Okay, let's move back. So after that, the next term that we use is expenses. Expenses are the cost incurred in the production process, day-to-day working of your business. So it further includes a number of expenses. These are some examples. We'll move further and we'll see there can be many more expenses. पहले दो terms जो use हो रहे हैं, that are wages and salary. So what is the difference between wages and salary? Yes, can anyone point it out? Wages are on daily basis and salary is Monthly. Okay. Yes, Vikas, you're right. Wages are generally on daily basis. जो हम हिंदी में बोलते हैं दिहाड़ी पे देना काम, that will be, yes, a small amount on daily basis. And salary is generally paid after 1 month. The next difference we say is wages are paid to low skilled workers. ब्लू कॉलर्ड जॉब के लिए वेजेस होती है, वाइल व्हाइट कॉलर्ड जॉब के लिए सैलरीज होती है. ओके, देन another expense for the business will be rent. So if you are running your manufacturing business in a rented factory, तो उसका रेंट जो आप पे कर रहे हो वो भी आपके बिजनेस का एक्सपेंस है. फिर अगर आपने लोन लिया है बैंक से, उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, दैट ऑल्सो बिकम्स एन एक्सपेंस. डेप्रिसिएशन, जो आपकी मशीनरी लगी हुई है उसकी वैल्यू कम हो रही है, प्रोडक्शन में जो मशीन लगी है, दैट इज एन एक्सपेंस. टेलीफोन चार्जेस आर योर एक्सपेंसेस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन की सैलरी, ये सब आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं. ओके, देन purchases, I have explained you what do you mean by purchases. So amount of goods procured by business on credit or for cash. So purchases can be of two types. Purchases can be cash purchases or they can be credit purchases. जब immediate payment कर ली तो cash हो गई,
जब उधार पे लाए तो क्रेडिट हो गई। अगर आपने वापस करा है सप्लायर को गुड, दैट बिकम्स परचेज रिटर्न। इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न्स आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों? क्योंकि गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, तो इट इज रिटर्न आउटवर्ड। जस्ट द ऑपोजिट टर्म, sales. Sales again can be cash sales or credit sales. And if the customer is returning the goods back to our business for any reason, then it is known as sales return or returns inward, because the goods are coming back in the business. Okay. After that, goods as a term I have explained you. Then the next term is inventory or stock, जो हम पहले भी बात कर रहे थे. So it includes all the unsold goods on a particular date. And as I told you, it not only includes the finished goods, जिन पे पूरा प्रोडक्शन का काम हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट है, पर अगर 50% काम हुआ है, 20% हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। 100% अभी प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। और अभी सिर्फ रॉ मटेरियल लाए हैं, उस पर काम शुरू नहीं हुआ, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री। Stock of finished goods plus stock of work in progress plus stock of raw materials, that makes your total inventory. फिर इससे रिलेटेड दो टर्म्स होती हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लिटरल मीनिंग स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक लास्ट डे ऑफ द ईयर। और इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। आफ्टर दैट, नेक्स्ट टर्म डेप्रिसिएशन। Depreciation is the reduction in the value of an asset due to use. Efflux of time. Efflux of time is movement of time, change in time. Obsolescence. Obsolescence, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, मार्केट में रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? ऑब्सोलीट बन गया, आउटडेटेड। तो दैट इज ऑल्सो डेप्रिसिएशन। Over the life of asset, you keep on reducing the value of the asset every year. That process is known as depreciation. Okay. Now, when we study depreciation, when we practically use a depreciation, then there are two methods of depreciation. One is the straight line method, and second is written down value method. Most popularly यही यूज होते हैं, so I'll explain these methods to you. स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है कि हर ईयर आप सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एसेट पे। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आपने कार परचेज करी बिजनेस में, ट्रैवलिंग, ऑफिशियल ट्रैवलिंग के लिए। कार की जो कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज है। कार की लाइफ 10 years है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है कि हर ईयर आप कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? आप 10,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में 10,000 माइनस करोगे, सेकेंड ईयर में 10,000 माइनस करोगे, ऐसे करके आप 10 years तक अमाउंट माइनस करोगे। 10th ईयर के एंड में एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी।
अगर फर्स्ट ईयर में मैंने 10,000 माइनस करा तो फर्स्ट ईयर के एंड पे कार की वैल्यू हो गई 90,000। ओके, उसके बाद सेकेंड ईयर दोबारा 10,000 माइनस करा, सेकेंड ईयर के एंड पे कार की वैल्यू हो गई 80,000 एंड सो ऑन। सो एट द एंड ऑफ द लाइफ of the asset of car, the value will be zero. This is straight line method of depreciation. Any question in this? Please ask. Okay, so then pay attention to the next method. Finally, yes, someone wants to ask something. Yes, Suraj. Yeah, ma'am. When the depreciation occurs, then companies feel like loss or not? Yes, it is a kind of loss because it is a fall in value of what you have purchased. तभी तो आप माइनस कर रहे हो ना उसको। तो फिर मैम अल्टीमेटली जैसे कि 10 साल तक हमेशा उसका 10,000 जो क्या बोलते हैं कैपिटल जो कम होते जाएगा, तो हाँ, फिर मतलब एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो फिर मैम वो कार को फिर मैन्युफैक्चर क्यों करेगा? मैन्युफैक्चर नहीं करा बेटा, आप परचेज करिए आपने कार। वैसे भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखो, जितनी गाड़ी चलती है जितनी पुरानी होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना। उसी तरह वही जो, मैं आप हाँ, बोलो, आप मतलब बोलो पहले। मैं या मैं कंपनी वाले की बात कर रहा हूँ कि हाँ जैसे कि जी। कार का जो वैल्यू जो है मतलब हर एक साल 10,000 कम होते जाएगा, तो हम्म। अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या होगा कार बेचने से वो? बेटा, आप अभी जो मैं बात कर रही हूँ एग्जाम्पल का, वो आपके बिजनेस ने कार परचेज करी है, ठीक है। तो जिसने परचेज करी है उसने यूसेज के लिए करी है। अगर आप मैन्युफैक्चरर की बात करो तो उसको क्या, उसने तो कार बेच दी, तो उसका तो प्राइम जो काम है वो यही है। हाँ, ये होता है कि जैसे जैसे नए मॉडल्स आते हैं पुराने वाले मॉडल्स की वैल्यू कम हो जाती है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग भी उस एस्टिमेट से ही करते हैं कि कितनी डिमांड है मार्केट में। ओके। ओके। कभी बहुत बारी होता है कि कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स पे वेटिंग पीरियड होता है, आप बुकिंग करवाते हो उसके 1-1.5 महीने बाद आपको डिलीवर होता है जो कार होती है। ओके, तो वो मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। ओके, तो otherwise straight line method is clear. Now we come to written down value method. सेम एग्जाम्पल लेते हैं, यही कार है 1 लाख रुपीज की, और हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हर ईयर इस पे 10% डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। अब ये 10% कहाँ से आया? ये इंडस्ट्री में जो नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं जनरली, ऐसे एसेट्स पे कितना डेप्रीसिएशन हो रहा है, हम भी वो रेट फॉलो करते हैं। तो ईयर 1 की बात करें, कार की वैल्यू जो कॉस्ट पड़ी बिजनेस को वो 1 लाख पड़ी, माइनस डेप्रीसिएशन। ईयर 1 में डेप्रीसिएशन विल बी 10% ऑफ 1 लाख रुपीज, which will be 10,000. So now we say written down value at the end of year 1 is 90,000. Then comes year 2. ईयर 2 में अब जो डेप्रीसिएशन लगेगी वो इस 90,000 पर लगेगी, 1 लाख पे नहीं लगेगी, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उस पे लगेगी। तो दैट अमाउंट बिकम्स 9,000 एंड नाउ द रिटर्न डाउन वैल्यू at the end of year 1, sorry, year 2 will be 81,000. तो आप क्या देख रहे हो कि हर ईयर आपकी अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन चेंज हो रही है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा नहीं, एक्चुअल में स्ट्रेट अवे तो नहीं आप रिलेट कर सकते उस पॉइंट से, बस सिर्फ ये रिलेट कर सकते हो कि सिंपल में सेम अमाउंट है और कंपाउंड में डिफरेंट है, अगर ऐसे समझना है आपने तो। ठीक है।
इंडस्ट्री में ज्यादा रिटर्न डाउन वैल्यू यूज होता है। ओके, बट देन अगेन वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि चॉइस ऑफ मेथड होता है हर कंपनी के पास, तो वेरी करता है डिसीजन। ओके, सो रिटर्न डाउन वैल्यू में फिर 81,000, थर्ड ईयर में आपका डेप्रिसिएशन 8100 होगा एंड सो ऑन। तो आप क्या देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर ईयर डेप्रिसिएशन सेम है, रिटर्न डाउन वैल्यू में हर ईयर फॉल हो रहा है, डेप्रिसिएशन डिफरेंट अमाउंट है और हर ईयर फॉल हो रहा है। So these are two common methods of depreciation used in business. I hope this is clear to everyone. So then we'll move back to the presentation. हाँ जी बेटा। अगर Yes, स्ट्रेट Pawan. मतलब 10 साल है तो WD Pawan. ज्यादा हाँ, होंगे please depreciation। please repeat your question again. मैम स्ट्रेट लाइन मेथड में कार की वो जो लाइफ है वो 10 years है, हाँ तो WDV में तो ऐसे ज्यादा होगी वैल्यू। बेटा, लाइफ तो उतनी होती है एसेट की। मैम नहीं, डेप्रिसिएशन कम हो रहा है ना हर साल। हाँ, तो जैसे 10 डेप्रिसिएशन साल पर लाइफ बाद तो उतनी है। कोई मशीन है, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ यही है कि वो 5 या 7 साल तक प्रोडक्शन कर सकती है फुल एफिशिएंसी से। तो लाइफ प्री डिफाइंड होती है। फर्क क्या आता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में लाइफ के एंड पे वैल्यू जीरो हो जाती है, पर WDV में हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट आपको लास्ट ईयर के एंड पे भी मिलता है एसेट का। रिटर्न डाउन वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, वो एग्जैक्टली जीरो कभी भी नहीं आती है। क्या कहा पावन आपने? WDV बेटर है फिर। बेटर कुछ नहीं होता बेटा इसमें। लाइफ के एंड पे आप एसेट को रिप्लेस करते हो। अब आप ये देखो, डीजल कार्स की लाइफ है 10 इयर्स। अब आपकी गाड़ी चाहे चल भी रही है, आपको पता है कि अब 8 साल हो गए इस कार को यूज करते हुए, आप कोशिश क्या करोगे, जल्दी से जल्दी इसको रिप्लेस कर दो, क्योंकि अगर एक बार ही उसकी लाइफ 10 इयर्स हो गई तो उसकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल ऑलमोस्ट, अगर दिल्ली की बात करूं तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो ऐसे करके हर एसेट की लाइफ डिफाइंड होती है। ओके मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, so let's move back. So this is what depreciation is. Next term used is vouchers. Voucher क्या होते हैं आपके? Proof of a particular transaction. Written document in support of a particular transaction. So like a cash memo. सेलर जो आपको देता है, बिल बना के देता है जो आपने कैश परचेज करी। इनवॉइस हुआ जब आपने कुछ क्रेडिट पे परचेज करा, या रिसीव्ड रिसीट जब आप कैश पेमेंट कर रहे हो। तो इन सारी टर्म्स को कलेक्टिवली हम वाउचर बोलते हैं। ये पेपर प्रूफ होता है, डॉक्यूमेंट प्रूफ होता है ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। Okay, next term is discount. So all of us are aware of what discount is. It is a reduction in the price of a good or service. Okay, so sale है 10%, 20%, ये सब क्या होता है आपका? डिस्काउंट होता है on the original selling price. Okay, now in accounts we say there are two types of discount. One is a trade discount and one is a cash discount. ट्रेड डिस्काउंट क्या है? अगर आप बल्क परचेज कर रहे हो तो सेलर आपको रिड्यूस्ड प्राइस पे गुड्स दे रहा है। ओके, आप रॉ मटेरियल परचेज करने गए, से आपने 100 kg परचेज करा तो एक वो प्राइस कोट कर रहा है, पर वो कह रहा है अगर आप 1000 kg परचेज करोगे तो मैं आपको रिड्यूस्ड प्राइस पे रॉ मटेरियल दूंगा। तो ये क्या हो गया एग्जाम्पल? ये ट्रेड डिस्काउंट का एग्जाम्पल है। ओके, तो अगर ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो आप वो मेंशन करते हैं अकाउंट्स में उस एसेट को, सॉरी उस रॉ मटेरियल को रिड्यूस्ड वैल्यू पे। ठीक है, तो कैसे आप मेंशन करोगे? से 1000 kg जो रॉ मटेरियल है,
वो आपको 100 की जगह 90 रुपए पे मिला है, तो आप इसको ऐसे मेंशन करोगे, 1000 kg ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट ₹90 पर kg, so that becomes 90,000. The worth of raw material purchased is 90,000. ओके, सो 1+1 जो फ्री हमें ऑफर मिलती है शॉपिंग मॉल्स में, 2+1 फ्री, ये सब क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, क्योंकि ये क्वांटिटी पे होता है। दूसरा टाइप का जो डिस्काउंट होता है वो कैश पेमेंट पे होता है, दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। तो योर सप्लायर सेज कि अगर आप इमीडिएट कैश पेमेंट करोगे तो हम आपको 5% ऑफ दे देंगे, जो टोटल बिल है उस पे, टोटल बिल अमाउंट पे 5% ऑफ फॉर इमीडिएट कैश पेमेंट। So this is known as cash discount. Okay. Trade discount is on quantity. Cash discount is on immediate cash payment. तो कैश डिस्काउंट आप डायरेक्टली रिकॉर्ड भी करते हो अपनी बुक्स में, तो ऐसा करेंगे जब अभी आगे हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे, तो कैश डिस्काउंट तब हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि इसको कैसे ट्रीट करते हैं। अगर हमें डिस्काउंट मिला है, बिजनेस को डिस्काउंट मिला है, तो इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर बिजनेस ने किसी कस्टमर को डिस्काउंट दिया है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट टर्म इज बैड डेट्स। वो डेटर्स जो अब हमें पैसा देने में असमर्थ हैं, दे आर अनेबल टू रिटर्न बैक द मनी, और दैट अमाउंट बिकम्स इरिकवरेबल फॉर द बिजनेस, so it is a loss for the business and it is known as bad debt. Then under financial statements, very important, what is a balance sheet? Balance sheet, as I told you, shows the financial position on a particular date, and that particular date is generally the end of the year. So balance sheet of A Limited as on 31st March say 2020. This is how बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। और अभी आगे भी हम करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे सारी लाइबिलिटीज लिखी जाती हैं और राइट हैंड साइड पे सारे एसेट्स लिखे जाते हैं। ओके, एंड विच मैच, मैच का मतलब क्या है, दोनों की अमाउंट का जो टोटल होता है दैट इज इक्वल एट द एंड ऑफ द ईयर। Only then we say that the accounts have been prepared properly, keeping all the principles and steps in mind. Okay, so it shows the financial position of the business on a particular date. Okay, then two terms which I think all of you would have heard, चाहे science के students हैं चाहे commerce के students हैं, sorry, is debit and credit. तो पर से कोई डेफिनेशन नहीं होती, डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है, ये टर्म की कोई डेफिनेशन नहीं है। ये दोनों टर्म्स यूज होती हैं अकाउंट के उस पे कॉन्टेक्स्ट में। तो आपने किसी का भी अकाउंट बनाया, से आपने राम का अकाउंट बनाया, तो अकाउंट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो हम फॉलो करते हैं। तो डेट, पर्टिकुलर्स, देन फोलियो एंड देन अमाउंट। ओके, अभी सिर्फ आप डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट पे फोकस करो। एफ करके जो कॉलम है दैट इज ऑफ फोलियो, व्हाट इज दैट, दैट आई लेट यू नो लेटर। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एन अकाउंट। अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है,
the left hand side of the account is known as the debit side, while the right hand side of the account is known as the credit side. This is the only definition of debit credit. अदरवाइज जो स्टूडेंट्स ने कॉमर्स स्टूडेंट्स ने स्टडी करा होगा, देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ अकाउंट, but those rules again are subjective to which account you are preparing. Otherwise, debit side, left hand side, credit side, right hand side. That is what is the true definition. Okay, so credit is the right hand side of an account. Okay, then I use the term entity. business entity है. एंटिटी क्या होता है? इकोनॉमिक यूनिट. इकोनॉमिक यूनिट का मतलब क्या है? अब आप सबने इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको पता है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मनी इन्वॉल्व होता है. तो इकोनॉमिक यूनिट इज वेयर transactions are taking place in monetary terms, and it can include sole proprietorship when a single person is running the entire business, single owner. Partnership is when there are partners and they are sharing profits and losses in a pre-decided ratio. Then corporations and companies are terms which are used interchangeably. कंपनी लार्ज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और उसमें बहुत सारे ओनर्स होते हैं. ओके, तो उसमें फिर वो कंपनी पब्लिक कंपनी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड हो सकती है जो जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, या वो प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है. पर कंपनी की जो डेफिनेशन होती है उसमें कंपनी रजिस्टर होती है अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013. Okay, so any economic unit is known as entity. Then receipts क्या है? जो आपको अमाउंट आपके बिजनेस में आ रही है. ओके, वो आपके लिए रेसीट है, आप रिसीव कर रहे हो उसको. दो टर्म्स होती है, रेवेन्यू और कैपिटल. रेवेन्यू होता है डे टू डे एक्टिविटी से जो पैसा आ रहा है. आपका बिजनेस की जो कोर एक्टिविटी है वो बुक सेलिंग है, तो बुक्स की सेल से जो पैसा आ रहा है दैट विल बी रेवेन्यू रिसीट. कैपिटल रिसीट क्या होता है? जो नॉन फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज से पैसा आता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके बिजनेस के पास एक डिलीवरी व्हीकल थी, आपने वो डिलीवरी वैन बेच दी, तो वो आपकी कैपिटल रिसीट हो गई. अब रोज रोज तो आप वैन्स को सेल नहीं कर रहे, एसेट को सेल नहीं कर रहे, वो आपका कोर बिजनेस भी नहीं है. ये जो ऐसी रिसीट्स होती हैं जो बिजनेस ऑपरेशन के अलावा आती हैं, दोज आर नोन एज कैपिटल रिसीट. ओके, नाउ अगेन रेवेन्यू और कैपिटल आप बिजनेस की नेचर पे क्लासिफाई करते हो. जैसे मैंने आपको कहा, आपके बिजनेस ने कार सेल करी, वो कैपिटल रिसीट हो गई. पर अगर आपका बिजनेस ही कार रीसेल का है तो आपके लिए कार रीसेल से जो पैसा आया वो क्या हो गया? रेवेन्यू रिसीट हो गई. ओके, so depending on the type of business you are undertaking, you classify the receipts into revenue receipts and capital receipts. ओके, सिमिलरली जो खर्चे होते हैं वो भी दो टाइप के हो जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो अगर बिजनेस बुक्स मैन्युफैक्चर और सेल करने का है तो जो डेली के खर्चे हैं, आप पेपर ला रहे हो, आप कार्डबोर्ड ला रहे हो, प्रिंटिंग का जो एक्सपेंस हो रहा है, जो रेंट पे कर रहे हो, ये सब आपका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. पर जो आप मशीन परचेज कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, वो आप रोज रोज परचेज नहीं कर रहे. वो आप एक बार मशीन परचेज करोगे, वो आपका 4-5 साल यूज हो जाएगी. ओके,
इट हैज एन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, एंड वन लास्ट टर्म इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर टर्म का मतलब क्या होता है? डीले कर देना। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेस्ट एग्जांपल होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अगर आपकी कंपनी ने से कोई ब्रांड एम्बेसडर हायर करा, कोई फिल्म स्टार या क्रिकेटर, तो उसमें बहुत खर्चा होता है। ओके, अब एडवर्टाइजमेंट में हम बोलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट आने में टाइम लगता है, एडवर्टाइजमेंट का रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो अगर आपने से हाइपोथेटिकली 20 लाख रुपीज अपने ब्रांड एम्बेसडर को दिए, तो वो पैसे का रिजल्ट, वो खर्चे का रिजल्ट आने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा। वैसे एडवर्टाइजमेंट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर इतना बड़ा जब आप अलॉटमेंट मनी का करते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो आप ये 20 लाख रुपए अगर एक ही ईयर में चार्ज कर लोगे तो आपके बिजनेस को लॉस ही होगा। आप क्या करते हो? आपको लगता है कि इस 20 लाख का फायदा हमें ओवर 5 इयर्स होगा। 5 इयर्स, जो आने वाले 5 साल हैं, उसमें इसका रिजल्ट दिखेगा हर ईयर में। तो आप हर ईयर में ये 20 लाख डिवाइड कर दोगे, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 5। हर ईयर आप अपना जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है वो 4 लाख दिखाओगे। ठीक है? यस, सो सूरज, इट ब्रिंग्स अ ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअली आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम जब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओवर द पीरियड इन विच वी आर एक्सपेक्टिंग द रिटर्न, that becomes a deferred revenue expenditure. I'll explain it again. Say you have, as part of your advertisement campaign, you have hired a cricketer to so you have hired a cricketer to advertise your uh, business, your product, and say the cost is coming out to be 20 lakh. Okay, now this 20 lakh you cannot charge to 1 year, क्योंकि इतने बड़े एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स का जो रिजल्ट आता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता है। ठीक है? तो अगर मैं एक ही ईयर में डाल दूं एक्सपेंस 20 लाख और मेरी इनकम ही उस ईयर में 15 लाख हुई है, तो मेरे को लॉस हो जाएगा 5 लाख का। तो इतने बड़े जब एक्सपेंडिचर्स होते हैं, हम इनको इनकी यूजफुल लाइफ में डिवाइड कर देते हैं। So what I feel when I take the decision of hiring a cricketer is that this 20 lakh of expenditure will give me benefit over 5 years. 5 years में मेरी सेल्स इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से इंक्रीज हो जाएंगी। तो आप क्या करोगे? इस 20 लाख को 5 इयर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो हर ईयर फिर आप कितना खर्चा दिखाओगे? 4 लाख का। 4 लाख इन दी फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो जैसे इस तरीके से अगर आप अपने एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप विकास दिस इज क्लियर नाउ। यस मैम। मैम इसके अंदर ये है कि जो हम जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट हम फर्स्ट ईयर में ही करेंगे, बट हाँ, फर्स्ट ईयर में जस्ट जस्ट फॉर द अकाउंट्स बुक हमें वो शो करना है कि वी हैव पेड इट इन 5 years। हाँ जी, बिल्कुल बेटा, ओके यही ओके होता है। ओके ओके मैम, ठीक है, ओके। अब ये भी अमाउंट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे 20 लाख है, अगर आप 20 हजार का खर्चा कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट पे, तो वो आप उसी ईयर में चार्ज कर लोगे। यस मैम, वो समझ गया, मैं वो समझ गया। ठीक है? यस ओके। मैम, थैंक यू। Okay. And then the last term which I am taking up right now is profit. Profit will be your income minus all the expenditure. If you get a positive value, that is revenue is greater than expense, then you have a net profit. If revenue minus expense is giving you a negative value, then it is a loss for the business. Okay,
So these are limited terms which I have taken up. There will be many terms which we'll come across in the coming chapters. So I'll take up those terms there itself. Okay? बस नहीं तो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा अभी ही